Hello everyone. On behalf of KL Mehta Dayanand College for Women Faridabad, we are going to organize 4-day workshop on plethora of tools for online teaching. My name is Neeru Sivas from Computer Science Department. I'm glad to be here with you today on a virtual platform. Welcome you all in the interesting session of MS Excel Android version. In this session, we have a complete overview of MS Excel Android version and how learning Excel will be benefited for you. Today we are going to learn about MS Excel Android version. As the name itself says, Excel that work on the Android operating system, or we can also say that Excel that work on your mobile phone. So every time, everywhere, it is not possible to keep your laptop or computer with you. So what to do when we are somewhere outside or out of your computer and laptop? And that time you get a call from your office or organization, and on urgent basis you need to share, update or get some Excel information. With that in mind, Microsoft has developed an MS Excel Android version for you. By using this application, you can switch your Excel work from laptop to mobile phone and create, share, edit file with it from almost anywhere. This video understanding that how to install MS Excel on your mobile phone. Before installing, we have to click on the Play Store, go to the Play Store and type MS Excel, or you can also type Excel and use MS Excel by Microsoft Corporation. Here two buttons, click on install button, and after clicking on install button, your application is downloading, start downloading on your mobile. It takes some time in downloading, so you have to be wait for that. And after installing this application, here two buttons are available, uninstall and open, and you have to click on open button and allow all the permissions and start your MS application, and you allow the permission and click on sign in later button. You have to click on sign in later button here, and for creating a new sheet you have to click on. Now I will tell you how to open Excel in your phone and what are the options and features present in MS Excel. Let's go over some basic to get started, that how can we edit our document, how can we create a worksheet, how can we save our worksheet, how can we edit it, how can we apply formula, how can we apply charts and tables, how can we insert in our document. So we have to learn all these things in MS Excel Android version. So this is the icon shown on your mobile screen. When you install MS Excel on your mobile phone, so this icon will show you, and when you want to open MS Excel, then you have to tap on that Excel icon. After tapping it, you can see here these all are the recent files. Recent file are those on which you have been worked before. So you can open these file from here. There are three dots available. These three dots are for something that is very much important for you and you always want to keep that file on the top, so you pin to the list. Okay, and when you want to unpin this list, you can click here on unpin. Okay, so you click here on unpin. Okay, unpin this list, correct. Then one of the thing also is here, that here is the open button.
I'm showing it you. Here is the open button. When you click here, you can see here shared with me this device. Here is these are the recent file which we have worked before. So pin or unpinned I have already told you. So we have to click here, symbols are not present, so we have to click on the recent button. When you click on the open button, when you click on the recent button, these three options are present, or when you click on the open button, these buttons are not available. So if you want to create a new file, you have to click on recent, then this option is available here, this plus sign is available here, and this sign is used for creating a new worksheet. Okay. This is the search option. If you want to search any of your file, so you can search it from here and go back from this button. And if you want to create a new blank workbook, so you can click on add button. Okay, so here are some templates available. These templates are for professional users, that if you want to do some changes, apply some changes and use it as according to your requirement. So we are basically beginners, so we have to deal with the blank workbook, because we have to learn basics first, then we can apply changes on these templates, then we can use them after learn the basics. Okay, so we have to click on blank workbook here. When we click here, we can see the screen, or we can also say that the interface of your Excel workbook. Here some options are available. You can see here, these are the various options available. I want to tell you something about these options. When I click here, so these are the options: share as PDF, save as, print, or setting. So when you create your document, so you can share your document by converting it into PDF, and you can share your document in PDF format. Okay, when you click on save, so you, whatever the workbook, what the data or what the worksheet you have been created, you can save it by clicking on save button, and save as button you can use for save a file with another name. Okay, and print is the option here for taking the printout of your file. Okay, so we can go, if you want to go back, you can click here on the back button, here click here, and this is your search option. If you want to search something from your workbook, so you can type here and you can search it from here. ओके, अभी तो हमारी फाइल में या हमारी वर्कशीट में कोई भी डाटा प्रेजेंट नहीं है, तो वी आर नॉट कैपेबल और वी आर नॉट हेयर टू सर्च समथिंग. सो we are basically taking the overview of this complete interface right now. So let's go back again. So tap here on home tab. So here this is the home tab open. When you click on the home tab, so you can get the various functions are available, various tools are available on home tab. When you click on insert, so here various tools related to the insert tabs are present here. Here tables you can insert, data from pictures you can insert shape here, you can insert text box, charts, comments and links. Draw, here draw options are available related to the drawing. We can use formula here. When we click on data tab, we can open this functions here. When we click on review, so we can open reviews options here, and when we click on view, so we can open view options here. So I want to give you some typing tips here.
कि जो आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो कि मैं जहाँ पर भी टैप कर रही हूँ ये जो ग्रीन बॉक्स है ये मूव करता है। तो ये जो ग्रीन बॉक्स है इसको एक्टिव सेल कहा जाता है। एक्टिव सेल इसको कहा जाता है। ये एक्टिव सेल क्या होता है बेसिकली? एक्टिव सेल वो सेल होती है जहाँ से हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि ये आपको ABCD हमारे कॉलम्स दिए हुए हैं और ये 1 2 3 ये हमारे रो है। और जिस जगह पर रो और कॉलम मीट हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये है, कहीं पर भी किसी भी सेल पे हम टिक कर रहे हैं, यहाँ पर क्या है, रो और कॉलम मीट हो रहे हैं, इसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ टाइप करना स्टार्ट करते हैं। टाइप करने के लिए हमने आपको बताया कि जहाँ पर हमारी एक्टिव सेल होगी हमारी टाइपिंग वहीं से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो टाइप करने के दो तरीके हैं, या तो आप फार्मूला बार पर टैप करो, ये फार्मूला बार है हमारा जहाँ पर ये FX लिखा हुआ है, फार्मूला बार पर टैप करो। टैप करने के बाद आपको जो भी लिखना है आप वहाँ पर लिख सकते हो। मैंने सीरियल नंबर डाला। ठीक है, नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट जाने के लिए आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इस पर भी क्लिक करके नेक्स्ट पर जा सकते हैं, डायरेक्टली टैप भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, फार्मूला बार पर क्लिक करोगे, टैप करोगे। टैप करने के बाद आप यहाँ पर राइट योर नेम हेयर एंड अगेन यू कैन टैप हेयर एंड यू कैन राइट हेयर क्लास। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख ली। दूसरा तरीका है लिखने का, आप थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लो साइज़ को, आप यहाँ पर डबल टैप करोगे तो ये एक स्लाइडर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, इस पर आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। तो सबसे पहले सीरियल नंबर था 1 डाल दिया, फिर हमने 2 डाल दिया, फिर हमने 3 डाल दिया। ठीक है, अब क्या है कि अब हमें ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पर टैप करेंगे, सिंगल टैप करो। सिंगल टैप करते पहले टैप करोगे तो आपका जो कर्सर होगा, जो आपकी सेल होगी वो एक्टिव सेल हो जाएगी। उसके बाद आप एक बार और टैप करोगे तो जो ये ऊपर आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये ऑप्शन आपको यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। ये कट के लिए है, वो कॉपी के लिए है। ठीक है, अगर आपको कोई कमेंट लिखना है किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर तो आप कमेंट में जाकर के कमेंट लिख सकते हो। अगर आपको कोई जो डाटा, जैसे मान लें मैंने यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो ये हट जाएगा, आप क्लियर पे क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा। हमें क्या करना है, हमें फिल करना है। ठीक है, तो मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए, यहाँ पर फिल पर आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा और आप इसको ड्रैग करके 8 तक ले आओ। आपको नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी जो सीरीज़ है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप नेम लिख सकते हो, डबल टैप करो, जो मैंने आपको तरीका बताया, तो फार्मूला बार में जाके लिखो या फिर नेम में आप इजीली राइट कर सकते हो। तो आप यहाँ पर नेम लिखो, निशा, फिर यहाँ पर डबल टैप करो, मोनिका, यहाँ पर डबल टैप करो, प्रिया, यहाँ पर डबल टैप करो, नीतू, यहाँ पर डबल टैप करो, हिना, यहाँ पर डबल टैप करो, पूजा। अब आपने देखा मैंने ये जो सीरियल नंबर 2 था, यहाँ पर ये जो नाम है ये गलत हो गया हमारा। अब हम इसको एडिट कैसे करें? तो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा से डबल टैप करो, यहाँ पर ये जो आपका स्लाइडर है इसको मूव कर सकते हो जहाँ पर भी गलत है। मेरे को ये 8 हटाना है, इसकी जगह पर मुझे आई लिखना है, मैंने मोनिका लिखा, इसको टिक कर दिया। दूसरा, यहाँ पर हमें क्लास डालनी है। अगर मेरे सारे बच्चे BCom के हैं तो मैं इस पर, अब यहाँ पर देखो आपको कीबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, एक्टिव सेल तो आपको दिख गई कि भाई मुझे टाइप तो यहीं से ही करना है, लेकिन आपको यहाँ पर कीबोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। तो कीबोर्ड लाने के लिए जो मैंने आपको बताया था, यू हैव टू टैप ऑन दिस एक्टिव सेल और उसके बाद डबल टैप करना है, डबल टैप फॉर राइटिंग, सिंगल टैप ऑप्शन लाने के लिए, कट, कॉपी और जो आपका कमेंट था, फिल था, इस ऑप्शन को लाने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डाला बीकॉम पे क्लिक किया। अब मैंने यहाँ पर नीचे मुझे यहाँ पर टाइप करना नहीं, मुझे यहाँ पर टाइप नहीं करना, मैं इस पर एक बार और टैप करूँगी। ये देखो आपके ऑप्शन, अब मैं डबल टैप कर रही थी तो मैं इस पर लिख पा रही थी, लेकिन अब मैंने सिंगल टैप किया तो मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। मैं फिल पर क्लिक करूँगी,
ये चेंज हो गया, मैं इसको ड्रैग कर लूँगी तो यहाँ पर बीकॉम आ गया। अब आपको डिफरेंस दिख रहा है कि मैंने यहाँ पर जब सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर तो सीरीज़ अलग अलग आई थी, 1 2 3 4 5 आई थी, और यहाँ पर जब मैंने किया तो यहाँ पर मेरे पास सारे सेम आ रहे हैं। तो इसका तरीका क्या था करने का कि जब मैंने इसको किया था तो मैंने सारे ऑप्शन में से 1 और 2 को दोनों को सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, मैं दोबारा से आपको करके बता देती हूँ कि मैंने जब इसको टाइप किया तो मैंने यहाँ पर डाला, डबल टैप करो, आ गया ये। ठीक है, 1 2 फिर मैंने यहाँ पर 2 डालना है, 2 डालना है। अब मेरे को क्या करना है कि इस पर इसको मैंने ड्रैग करके इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिल करूँगी तो ये इस तरीके का आएगा। ठीक है, अगर मैं क्लियर बटन पे क्लिक करूँगी तो जो मैंने भी काम किया है, यहाँ पर देखो क्लियर बटन आपको दिख रहा है, मैं क्लियर बटन पर क्लिक करती हूँ तो ये सारा जो भी काम मैंने यहाँ पर किया था, अभी जो किया था वो सारा दोबारा से टैप कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ से और क्लियर कर दो, हट गया। ठीक है, और एंटर से क्या होगा कि एंटर से जो है मैं एंटर प्रेस करूँगी तो ये नीचे नीचे चला जाएगा। ठीक है, नीचे जाता है, नीचे वाली लाइन पर चला जाता है। ठीक है, अब हम जाते हैं, अब हम बैक कर देते हैं, तो अब हम होम टैब पे चले जाते हैं। अपना होम टैब के कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सिलेक्ट करने के लिए मैंने ऐसे इसको सिलेक्ट किया और मैं इसको इटैलिक में चाहती हूँ अपने डाटा को, मैंने इटैलिक कर दिया, मेरा डाटा इटैलिक में आ गया। मेरे को यहाँ पर इसको मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने ऐसे ड्रैग किया है इसको, मुझे क्या करना है, ये बोल्ड कर देना है और अंडरलाइन कर देना है, हो गया मेरा अंडरलाइन। उसके बाद मैं कलर फिल करना चाहती हूँ तो मैंने फिल कलर पे गई, यहाँ पर मेरे को ये कलर फिल करना है, मैंने ये फिल कर दिया कलर। ओके, फ़ॉन्ट कलर अगर मुझे चेंज करना है, मैंने फिर दोबारा से यहाँ पर क्लिक किया, फ़ॉन्ट कलर मैं चाहती हूँ कि मेरा ब्लू हो जाए तो वो ब्लू हो जाएगा, बट ब्लू दिखाई नहीं दे रहा ज़्यादा अच्छे से, तो मैं इसको डार्क ग्रीन कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट हो गई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जो है आप यहाँ पर क्लिक करो और ये टैप करो, फिर उसके बाद हम चाहते हैं इनके अलाइनमेंट्स थोड़े से चेंज हो जाए। मैं इसको सेंटर अलाइन चाहती हूँ, जो मेरे सीरियल नंबर का जो डाटा है उसको मैं सेंटर करके अलाइन कर सकती हूँ। अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। ठीक है, अगर मुझे बॉर्डर करना है, मर्ज एंड सेंटर करना है, तो मैंने अब यहाँ पर ये जगह छोड़ी थी, मैं इसको ड्रैग कर दूँगी ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं मर्ज एंड सेंटर करती हूँ तो मैं यहाँ पर क्या टैप कर देती हूँ, ये क्या है, मेरी स्टूडेंट लिस्ट है। ठीक है, तो इसको कर देती हूँ मैं स्टूडेंट लिस्ट। ठीक, ये मेरी स्टूडेंट लिस्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से इसको चेक कर देते हैं, फिर दोबारा से हम होम टैब पे जाते हैं। होम टैब में उसके बाद ये रैप टेक्स्ट है हमारे पास। रैप टेक्स्ट में क्या होगा कि अगर सपोज़ करो आपने कोई कॉलम यहाँ पर बना दिया, इस कॉलम में हमने डबल टैप करो, फिर से मैंने यहाँ पर अपना ही नाम लिख दिया, NEERUSI स्पेस SIWAS। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा है ना, आ नहीं रहा है इस कॉलम के अंदर। मैं चाहती हूँ कि नीरू ऊपर आ जाए एंड सिवास नीचे आ जाए, तो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ। इसे दोबारा से मैंने सिलेक्ट कर लिया और ऑप्शन क्या था मेरा, बैक जाते हैं हम। बैक जाके मेरे को दोबारा से होम टैब पे क्लिक करना था, रैप टेक्स्ट कर दिया। आप देखो नीरू और सिवास आ गया। अब मैं इस पर एक सिंगल टैप करती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं इसको क्लियर कर देती हूँ, हट गया यहाँ से ये। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट और डिलीट करना है। अगर आप कोई कॉलम बीच में यहाँ पर कुछ, जैसे मान लो इसमें इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट रो इंसर्ट कर सकते हो, ये रो इंसर्ट हो गई। आप डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट रो कर सकते हो, वो वापस से हम उसी पोजीशन पर आ जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी बेसिक फॉर्मेट हेयर। अब मैं यहाँ पर एक कॉलम और बना करके देख लेती हूँ। जैसे सैलरी डाल दिया मैंने, सैलरी मैंने डाला और सैलरी डाल दिया मैंने 45, 56, 67। और अगर मुझे सेम ही है, अभी सबकी सेम ही है, तो मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ यहाँ पर, फिल करती हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, ये सेम हो गया सबका। और उसके बाद मुझे क्या करना था, नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट, अब मैंने आपको क्या बोला कि भाई मेरे को तो ये जो है डाटा करेंसी में चाहिए, ये तो सैलरी है, तो ये आपकी करेंसी के अंदर ये डाटा आपका आ गया। नंबर फॉर्मेट में
करेंसी है। करेंसी में भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप कौन सी करेंसी यूज़ करना चाहते हैं। मोर सिंबल्स आपके पास आ जाते हैं यहाँ पर कि आपको जो है ये वाला सिंबल लेना है या कोई भी सिंबल जो आपको डॉलर वाला लेना है आप डॉलर ले सकते हो, जो भी आपको लेना है आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से मोर सिंबल्स में जा कर के मोर सिंबल्स में जाओगे तो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये करेंसी के सिंबल्स आपको आ जाते हैं, तो आप यहाँ से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो भी करेंसी आपको चाहिए आप उस पर्टिकुलर करेंसी को यूज़ कर सकते हो। जैसे मुझे रुपीज़ चाहिए, भाई मैं इंडियन हूँ तो मेरे को क्या करना है, रुपीज़ में मैंने यूज़ कर लिया। ओके, अब मैं इसको बैक चली जाऊँगी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास जिनको हमने सिंपली यूज़ कर लेना है। आप होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे जैसे ही आप जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन एक और अवेलेबल है कि हम फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट स्टाइल को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको पहले यहाँ पर टैप करना होगा। ये एक्टिव सेल आ गई, यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आप जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको डालना है तो आप वो फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आप उसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो साइज़। उसके बाद अगर आपको ये चेंजेस अप्लाई करने हैं अपनी टेबल में, आप एज इट इज़ रहने दीजिए इसे। अगर आपको अप्लाई नहीं करने हैं तो आप इसको अंडू कर दीजिए और आपकी जो लिस्ट होगी वो पहले जैसी थी एज इट इज़ हो जाएगी। इसके बाद एक सर्च ऑप्शन हमें यहाँ पर है, फाइंड में आपको अगर आपकी लिस्ट में से कोई भी डाटा है तो फाइंड में आप जाओगे, पहले होम टैब पे जाइए। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पर फाइंड पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये इस तरीके का मुझे नीतू नाम फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पर नीतू फाइंड आउट करूँगी और उसको सर्च कर लूँगी। तो आप देखिए आपके एक्टिव सेल्स कर्सर जो है वो नीतू के पास यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इसका नाम आपको शो हो रहा है एक्टिव सेल कर्सर के अंदर। तो अगर आपको जो भी चेंजेस करना चाहते हैं नीतू वाली रो में तो आप इजीली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एक और ऑप्शन है कि आप कोई भी शीट ऐड करना चाहते हो तो वहाँ पर अगर हम कंप्यूटर वर्जन की बात करते हैं तो कंप्यूटर वर्जन के अंदर हमारे पास 3 शीट्स अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पर हमारे को एक ही शीट मिलती है। अगर हम और भी शीट अपने वर्कशीट में ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन गिवन है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर शीट ऑप्शन अवेलेबल है। आपको प्लस सिंबल पर क्लिक करना है। प्लस सिंबल पर आप क्लिक करोगे तो आपको शीट ऐड हो जाएगी। अगर आप शीट डिलीट करना चाहते हो कि भाई मेरे को ये शीट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप यहाँ पर टैप करके रखोगे। उसके बाद डिलीट शीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर दोगे और ये आपकी शीट डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास आता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। तो आप अपनी कोई भी रो जो है, कॉलम जो है उसको शॉर्ट कर सकते हैं। इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हो, असेंडिंग में ऑलरेडी है, आप इसको डिसेंडिंग में ऑर्डर करना चाहते हो तो ये डिसेंडिंग में हो जाएगा और दोबारा हम इसको एज इट इज़ असेंडिंग में ही सेट कर देते हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस थे जो होम टैब के थे वो हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब के ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे। तो हम इंसर्ट टैब के जो ऑप्शंस यूज़ करने के लिए शीट 2 पर वर्क करके देख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही यूज़ करनी है हमें। शीट 1 और शीट 2 पर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं तो हम उसको अप्लाई करके देखेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हम शीट 2 पर इंसर्ट ऑप्शंस को अप्लाई करके देख सकते हैं। आपको कोई टेबल ऐड करनी है, आप टेबल पर क्लिक करोगे, टेबल ऐड हो जाएगी। बढ़ानी है टेबल का कॉलम ऐड करने हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हो। इसके अलावा सिंपल क्या है, अगर आप डिलीट करना चाहते हो आप इस पर सिंपली टैप करोगे, यहाँ पर कॉर्नर पे आप टैप करोगे, जो ये कॉर्नर है यहाँ पर टैप करोगे और इसको डिलीट कर सकते हो टेबल को। इसके बाद इंसर्ट में हमारे पास ड्रॉ फ्रॉम पिक्चर डेटा फ्रॉम पिक्चर ऑप्शंस हमें यहाँ पर गिवन है। तो हम यहाँ से पिक्चर अपने मोबाइल फ़ोन से क्लिक करके उसको यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। कोई पिक्चर आपके मोबाइल फ़ोन में है तो आप उस पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कोई पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हमें डालनी है तो कोई भी इंसर्ट करनी है कोई पिक्चर तो हम उसको अपनी एक्सेल फाइल के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। कोई शेप आपको डालना है, जैसे हमें सर्कल का ये शेप डालना है तो इसके पास ये नोड्स हैं, इन नोड्स को यूज़ करके हम इसका साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसमें फिल कलर कर सकते हैं। अगर हम इसकी आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं तो आउटलाइन के लिए हम ऑप्शंस देख सकते हैं। आउटलाइन मेरे को ब्लैक चाहिए थी, मैंने इसमें ब्लैक आउटलाइन कर दी है। उसके बाद
हम यहाँ से शेप्स के बाद इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमारे पास शेप्स हो गया। शेप्स के बाद टेक्स्ट बॉक्स हम डालना चाहे तो डाल सकते हैं, और चार्ट हम कोई ऐड करना चाहते हो तो उसको भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टैप करते हैं, टैप करने के बाद डिलीट का ऑप्शन आ जाता है, ये डिलीट कर देते हैं अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये सारे के सारे हमारे इंसर्ट ऑप्शन थे। इंसर्ट बेसिकली क्या है कि अगर आप अपनी तरफ से कुछ अपनी शीट में इंसर्ट करना चाहते हैं, कोई टेबल इंसर्ट करना चाह रहे हैं आप, या कोई पाई चार्ट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो इनको, या कोई पिक्चर या कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हो तो आप उसको ईजिली इंसर्ट कर सकते हो, या कोई डायग्राम आप कुछ करना इंसर्ट करना चाहते हो उसको भी आप इजीली यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। तो ये इंसर्शन के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद ड्रॉ ऑप्शन है यहाँ पर, ड्रॉ विद मूव्स और टच। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हाइलाइटर या पेन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पेन पे क्लिक करते हो तो आप पेन से राइट कर सकते हो, हाइलाइटर यूज़ करोगे तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। स्टॉक इरेज़र यूज़ करोगे तो स्टॉक इरेज़र यूज़ करोगे तो ये सारा जो भी आपने ड्राइंग से रिलेटेड टूल्स यूज़ किए वो सारे इरेज हो जाएंगे। और आप साइज़ चेंज करना चाहते हो तो साइज़, जो ब्रश का साइज़ उसको चेंज करने के लिए ड्रॉ विद मूव्स और टच पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर थिकनेस आपकी आ जाएगी, तो आपका जो ब्रश साइज़ है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यही सारे ऑप्शंस आपके ड्रॉ के अंदर गिवन है। आप यहाँ से बैक जाइए, बैक जाने के बाद ये जो ड्रॉ ऑप्शन है ये आपका हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से हम डाटा पे जाते हैं। डाटा में हमारे पास कोई ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। हम रिव्यू पे जाते हैं। रिव्यू में दो ऑप्शंस हैं, कमेंट और शो कमेंट। अगर हमें किसी भी सेल पे कोई कमेंट डालना है तो हम यहाँ से कमेंट पर क्लिक करेंगे तो हम कमेंट लिख सकते हैं। शो कमेंट पे शो कमेंट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो वो जो कमेंट है हमें इजीली शो हो जाएगा। ठीक है। व्यू जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके अंदर, व्यू के अंदर क्या होगा कि आप, व्यू क्या बताता है कि आप अपनी स्क्रीन को किस तरीके से देखना चाहते हो। तो व्यू को हम इसलिए यूज़ करते हैं अपनी स्क्रीन को बेसिकली देखने के लिए, कि भाई स्क्रीन जो होगी वो हमारी किस तरीके से दिखाई देगी हमारी। ठीक है। अगर हमें फार्मूला बार नहीं चाहिए हम इसको अनचेक कर देते हैं। ग्रिड लाइंस हमें नहीं चाहिए हम इसको अनचेक कर देते हैं। हेडिंग्स हमें नहीं चाहिए हमने इसको अनचेक कर दिया। पूरी ब्लैंक शीट हमें यहाँ पर दिखी। अगर हमें ये चीज़ें देखनी है तो हम इन पर चेक लगा देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी। शीट लेफ़्ट टू राइट करनी है, जो ये हमारा जो ये ऑप्शन आपको दिख रहे हैं रो है, अगर हम शीट लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो ये जो ऑप्शन है हमारे लेफ़्ट में चले जाएंगे रो। और अगर हम इसको टिक मार्क को हटा देते हैं तो ये एज इट इज़ पहले जैसे ही हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जूम इन ऑप्शन है, जूम आउट है। अगर आप शीट को थोड़ा बड़ा करके देखना चाहते हो साइज़ तो आप जूम इन कर लो, और जूम आउट करना चाहते हैं तो आप जूम इन करोगे तो साइज़ आपका बढ़ जाएगा, जूम आउट करोगे तो इसका जूम साइज़ लेस हो जाएगा। फ्रीज़ पेन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम सेलेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा जब आप जब हम इसको ऐसे मूव कर रहे हैं सारी स्क्रीन जो है हमारी मूव हो जाती है। आप देख रहे हो यहाँ पर हमारी जो है सारी स्क्रीन मूव होती जा रही है। ABCD ये सब छुप जाते हैं, पूरी स्क्रीन मूव होगी। मैं ऊपर को स्क्रॉल करती हूँ इसको तो ये पूरी स्क्रीन दिख नहीं रही भाई, इसकी हेडिंग्स हमें नहीं दिखेंगी। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अगर हमें किसी अपने पेन को फ्रीज़ करना है तो हम क्या करेंगे, फ्रीज़ पेन कर देंगे तो अब ये मूव नहीं होगा। ये देखो यहाँ से मैंने फ्रीज़ किया, ये यहाँ तक ABC जो थे वो मूव नहीं हो रहे, बाकी ये मूव हो रहा है। ठीक है। कभी हमारे पास लिस्ट ऐसी आ जाती है बच्चों की, कभी कभी हम कॉलेज में लिस्ट रेडी करते हैं, बच्चों की कट लिस्ट आ जाती है तो कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं जो कि हम फिक्स करना चाहते हैं, फ्रीज़ करना चाहते हैं, और कुछ ऐसे कॉलम होते हैं जो कि थोड़ा डिस्टेंस में होते हैं। जैसे ये लिस्ट आपको दिख रही है तो मान लो कुछ कॉलम DEF में लिखे हुए थे, उनकी हमें ज़रूरत नहीं, हम G से चाह रहे हैं कि G से कौन सा मैच हो रहा था, हम ईज़िली उसको साइज डाटा को हम देख पाते हैं और वो उसके बराबर में डाटा हमारा दिखता हुआ प्रेजेंट होता है। अगर आप इसी चीज़ को फ्रीज़ पेन अगर आप हटाना चाहते हो तो आप इस पर दोबारा से क्लिक करो, वो अनफ्रीज़ हो जाएगा। ठीक है। दूसरा फ्रीज़ टॉप रो, अगर आप टॉप रो को फ्रीज़ करना चाहते हो क्योंकि जैसे कुछ हेडिंग्स हमारी होती है, लिस्ट हमारी बहुत लंबी है, बच्चों का डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब हम स्क्रॉल करते हैं तो वो कॉलम्स भी हमारे दिखने बंद हो जाते हैं। ठीक है। वो भी स्क्रॉल हो जाते हैं, तो हम चाहते हैं कॉलम तो हमें दिखते रहें लेकिन डाटा हमारा स्क्रॉल होता चाहे, तो हम टॉप रो को फ्रीज़ कर देते हैं। अब देखो मैं इसको स्क्रॉल करती हूँ तो जो टॉप रो है ना 1, वो हमारी चेंज नहीं हो रही है और
हम स्क्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इस पे को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीज टॉप रो पे दोबारा क्लिक कर देंगे। अब देखो ये 1 2 सारा ही जा रहा है हमारा। क्लियर। उसके बाद फ्रीज पेन फर्स्ट कॉलम, क्या फर्स्ट कॉलम को एज इट इज़ रखना चाहते हो तो ये एज इट इज़ रहेगा और ये वाली स्क्रीन हमारी मूव होगी। और इसको नहीं चाहते हो चेंज करना तो आप फर्स्ट रो को हटा दो। इस तरीके से आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अब कुछ फॉर्मूले हैं हमारे एक्सेल के अंदर। ठीक है, अब फॉर्मूलों को कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे हम यूज़ करेंगे, तो उसको हम आगे सीखते हैं कि कैसे फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले, सिंपल फॉर्मूले हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं एक्सेल पे। Now we have to learn that how can we apply formula on particular row or particular column. So for applying formula, basic formula, sum, multiply, division, subtract, for applying this formula we have to type some number in these rows. So we type here 7 and 6 and 8 and इसको ऐड करने के लिए, सम करने के लिए हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला है इक्वल टू, आप टाइप कीजिए एंड देन यू राइट सम हेयर, सम टैप कीजिए और उसके बाद सिलेक्ट कर लीजिए कितने जो रो है उनका आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर 4 5 6 जो रो है उनको सिलेक्ट किया और एंटर कर देंगे हम, तो ये आपका सम हो गया। अब एक सम करने का तरीका एक और भी है हमारे पास। आप यहाँ पर टैप कीजिए, जिस भी पर्टिकुलर कॉलम में आपको ऐड कर नंबर्स डालने हैं वहाँ पर टैप कीजिए 8 एंड 9। अब मैं यहाँ पर इसको सम करती हूँ, तो सम करने के लिए इक्वल टू पे प्रेस कीजिए एंड देन राइट सम हेयर। इस पर सम आ गया, आपको फार्मूला आ गया। यहाँ पर इस पर हम टैप कर देंगे, ये फार्मूला हमारा यहाँ पर यूज़ हो गया। अब हम ये फार्मूला तो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, लेकिन हमें रेंज बतानी है कि किन नंबर्स को हम यूज़ कर रहे हैं जिनका हमें सम करना है। तो मैं यहाँ पर टैप करूँगी और यहाँ से सिलेक्ट कर दूँगी कि मुझे इन तीनों का ही चाहिए, कि अगर बाई चांस मैं कोई और नंबर भी यूज़ करूँगी तो आगे वो उसका एडिशन मेरे पास आ जाएगा। और एंटर कर दिया, ये 17 है। और अगर मैं यहाँ पर 1 डालती हूँ और एंटर करती हूँ तो ये देखो 18 हो गया। उसके बाद मल्टीप्लाई अगर मैं करना चाहती हूँ तो 2 लिखा, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया और मैं इनको मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ यहाँ पर, तो मैंने इक्वल टू डाला। इक्वल टू डाल के मैंने सेल को सिलेक्ट कर लिया, ये वाली सेल पे टैप किया, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई सिंबल, यहाँ पर सेल टैप किया। टैप करने के बाद एंटर कर दिया। 3 2 6 होता है, 6 हमारा होकर के आ गया। डिवाइड के लिए मैंने यहाँ पर 6 डाला, यहाँ पर 2 डाला। अब मैं यहाँ पर डिवाइड करना है हमें, डबल टैप, यहाँ पर इक्वल टू डालेंगे। इक्वल टू डालने के बाद हमें क्या करना है कि 6 को डिवाइड करना है। डिवाइड के लिए सिंबल यूज़ होगा 2 से, ठीक है, और एंटर प्रेस कर देंगे तो 2 3 6, तो 3 हो गया। सब्ट्रैक्ट करना है हमें, अगर 9 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 3 को, तो हम कर सकते हैं ईज़िली। यहाँ पर इक्वल टू करेंगे और जिस नंबर से जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, 9 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए हमारे पास ये सिंबल होता है, किसको करना है, 3 को करना है। एंटर प्रेस कर देंगे तो 3 - 9 = 6। तो दीज आर दी बेसिक फार्मूला जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद हम इनको अप्लाई कर सकते हैं अपनी शीट्स पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।